Good morning to everyone. This is the sum we will do in this lecture. You all can see in your screen. The following item appears in the balance sheet of Desh Bandhu Limited as on 31st March 2017. Share capital, equity, authorized is 5 lakh equity shares of rupees 10 each. Authorized is the maximum shares which a company can issue. Issued, subscribed, called and paid up is 4 lakh shares of rupees 10 each. Equity का authorized is 5 lakh. Issued, subscribed, called and paid up is 4 lakh shares. Preference shares, authorized, issued, subscribed, everything is same. 60,000 equity shares, 60,000, 12% preference shares of rupees 20 each, fully paid. There is an investment of 3,50,000. Profit and loss account has a credit balance of 7 lakh. It was decided to redeem the preference shares at a premium of 5%. So redemption will take place at a premium of 5% as on 31st March 2017. It was further decided to sell investments at 3 lakh. Now investment value is 3,50,000, but it was decided to sell the investments at 3 lakh. So tell me, it will be a profit or a loss? Investment was costing 3,50,000, but the investment was sold for rupees 3 lakh. So it's a loss of 50,000. Now finance part of the redemption fully out of profits, subject to leaving a balance of rupees 1,40,000 in the profit and loss account. We have 7 lakhs in the profit and loss account. हमें बोला है कि वो 7 लाख में से हमें क्या करना है, 1,40,000 छोड़ के बाकी सब यूज करना है. फाइनेंस पार्ट ऑफ द, एक पार्ट है, हिस्सा है रिडेम्पशन का, जो कि हम पार्टली बाय प्रॉफिट पार्टली बाय शेयर्स है. तो हम कितना प्रॉफिट यूज करेंगे, सब्जेक्ट टू लिविंग अ बैलेंस ऑफ 1,40,000 in the profit and loss account. We have to leave 1,40,000 balance. ये चाहिए रहेगा फ्यूचर यूज के लिए. रिमेनिंग वी कैन यूज टू क्रिएट CRR. Remaining we can use to create capital redemption reserve. Issue sufficient number of equity shares at a premium of rupees 2 to raise the balance of the funds required. Now they have not given us that how many number of equity shares has to be issued. They say issue sufficient number. मतलब जितना चाहिए. Sufficient means as much as required. Sufficient means what? As much as required. But not given in the question that how many number of equity shares should be issued. So they say issue sufficient number of equity shares at a premium of rupees 2 to raise the balance of the funds required. The above decisions have been carried out and the preference shares redeemed. तो ऊपर जो भी decisions were taken, that has been carried out, that has been implemented, and the preference shares have been redeemed. So we have to pass journal entries to record the above transactions. Journal entries in the books of Desh Bandhu Limited. Dates are not given, so we will take serial number, particulars, LF, debit and credit amount. So सबसे पहले what we will do, यहाँ पे shares both, that we are concerned about preference shares. So preference shares are fully paid up,
20 rupees fully paid. So final call का entry नहीं आएगा. There is no call scenarios also in the question. So call scenario received या forfeiture उसका भी entries नहीं है. Directly we will also start with funds for redemption. That is we have sold investment at 3 lakhs. बताओ तो इन्वेस्टमेंट को 3 लाख में सेल करेंगे तो क्या मिलेगा? When we will sell our investment at rupees 3 lakhs, what will we receive? इन्वेस्टमेंट को सेल किया तो हमें क्या मिलेगा? Yes, correct. We will get cash. So debit what comes in? Cash, bank account, debit. Can anyone tell me how much cash is received? How much cash is received? Investment is of 3,50,000 and sell investment for 3 lakhs. हमने 3 लाख में इन्वेस्टमेंट को सेल किया तो हमें 3 lakhs मिला. नाउ इन्वेस्टमेंट को सेल किया तो इन्वेस्टमेंट विल गेट कैंसल्ड. इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कैंसल हो जाएगा. इन्वेस्टमेंट इज अ असेट. Asset means debit balance. Investment is a asset. Asset means debit balance. But asset cancel हो जाएगा तो debit का opposite credit. Debit का opposite credit. Asset, investment is asset. Asset means debit. But cancel हो जाएगा तो credit हो जाएगा. And investment का value कितना है? 3,50,000. This shows कि हमने 3,50,000 का चीज 3 लाख में सेल किया. 3,50,000 का इन्वेस्टमेंट we sold for 3 lakhs. So tell me, it is a profit or a loss? We already know it is a loss. Loss means debit side में difference आ रहा है. We may see that our credit is higher. Credit का value ज्यादा है, debit का value कम है. So debit side में we will write profit and loss account, debit, and bracket में we will write loss. And loss is of how much? Loss is of 50,000. Reserve है profit and loss account. कम हो गया reserve because loss हो गया. Being investment sold at loss. Being our what I say, this in P&L account will come in the debit, not in the credit. Credit में आया मतलब प्रॉफिट होता है, बट यहाँ पे लॉस हुआ है. लॉस मतलब इन्वेस्टमेंट विल कम इन द डेबिट. प्रॉफिट होगा तो ही P&L account will come in the credit. So being, what is the narration? Being investment sold at loss. This is done. Now let us go to the next entry. Next entry में हमें क्या चाहिए? हमने इक्विटी शेयर भी इशू किया है. We have issued sufficient number of equity shares also. So equity shares कितना issue किया? Because we have to pass entry for equity shares issued at 2 rupees premium. हमें उसके लिए entry pass करना है. So we will have to go to the working note. We will have to go to the working note. Let us go to our working note and let us calculate. Let us go to working note and calculate the number of equity shares. तो ये करने से पहले हमारे लिए important है, let us finish off our working notes. क्या before entry, let us finish off our working note. Calculation of amount, because CRR में कितना amount जाएगा वो हमें नहीं पता है. Transferred to CRR account. Now P&L account has 7,50,000. Sorry, 7 lakh. P&L account has 7 lakh. P&L account में 7 lakh rupees. But question says 1,40,000 हमें use नहीं करना. Remaining use कर सकते. But 1,40,000 use नहीं करना. तो उसका remaining हमें CRR में भी तो transfer करना है. So let us see how much balance is there in the P&L account. Balance
in profit and loss account. Balance in profit and loss account. How much is the balance? Balance is 7 lakhs. अब यहाँ पे 7 lakhs में देखो पहले एंट्री में लॉस हुआ है, पीएनएल अकाउंट डेबिट में है, तो लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कम हो गया. See in the first entry itself, we can see there is a loss and loss हुआ तो हमने profit and loss account utilize किया. अगर profit होता तो P&L account का balance increase होता, but यहाँ पे loss हुआ है तो profit and loss account का balance कम हो गया. Getting my point? Less loss on. अगर यहाँ पे profit होता ना तो profit and loss account का value increase हो जाता, but because there is a loss, there is a reduction in the value of profit and loss. कितने का लॉस है? 50,000. So कितना अमाउंट होता है? 7 lakh minus 50, we have 6,50,000. तो इसमें से हम क्या करेंगे? 6,50,000 में से लेस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. प्रीमियम भी तो है रिडेम्पशन में. रिडेम्पशन में what we'll have to do, we'll have to pay money. हमें सिर्फ शेयर्स के लिए नहीं चाहिए, शेयर का फेस वैल्यू मतलब जितना भी नंबर ऑफ शेयर्स है जो हमें रिडीम करना है 60,000 into 20, हमें उसके लिए तो पैसा चाहिए CRR क्रिएट करने, लेकिन वी रिक्वायर दैट एक्स्ट्रा 5% व्हाट वी आर गिविंग, उसके लिए भी तो राइट साइड में रखने के लिए पैसा चाहिए. हमारे पास क्वेश्चन में एक ही रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिया नहीं है, सो P&L अकाउंट में से ही हमें यूज करना पड़ेगा. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है? लेट अस सी. 60,000 shares are there. 60,000 shares are there and into कितना 5% है? 20 का 20 rupees is the per share value. उसका 5% हमें क्या करना है? प्रीमियम देना है. पर शेयर इज 20 rupees. पर शेयर इज 20 rupees और हमें वो 20 rupees में 5% का प्रीमियम देना है. सो 20 का 5% मीन्स हम पर शेयर 1 rupees का प्रीमियम दे रहे. तो 60,000 शेयर्स को 1 rupees का प्रीमियम दिया, सो वी विल हैव 60,000. ये भी यूटिलाइज करना है. यस, हम CRR क्रिएट करते वक्त सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं यूज करते, लेकिन हम जब प्रीमियम राइट ऑफ करते हैं तो उसके लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करते हैं. बट यहाँ पे प्रीमियम देखो, प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, मतलब हमें P&L अकाउंट को यूज करना पड़ेगा फॉर गिविंग दैट एक्स्ट्रा. प्रेफरेंस शेयर इज रिडीम्ड एट अ प्रीमियम. प्रेफरेंस शेयर रिडीम किस में हुआ है? प्रीमियम में. तो प्रीमियम का 5% के लिए भी पैसा साइड में रखना है, बिकॉज हम नॉमिनल फेस वैल्यू के लिए भी प्रोविजन करते, प्रीमियम के लिए भी राइट ऑफ करने के लिए प्रोविजन करते. तो उसके लिए 1 rupees का प्रीमियम दे रहे, तो 60,000 साइड में रखा. तो अभी कितना बचा हमारे पास? ये 60,000 देने के बाद कितना बचा? हाउ मच इज लेफ्ट विथ अस? वी हैव 5,90,000. करेक्ट. ये 5,90,000 में से कितना मिनिमम हमें यूज नहीं करना है? हाउ मच मिनिमम बैलेंस यू हैव टू कीप इन P&L अकाउंट? मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन्ड इन P&L अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस रखना है हमें? वो भी लेस करेंगे. 1,40,000 हमें रखना है. We have to keep aside 1,40,000. So 1,40,000 ये तो यूज नहीं कर सकते, इतना साइड में रखना ही है. तो कितना यूज कर सकते हैं? So how much is the profit available for creating CRR? Profit available for creating CRR. How much? 5,90,000 में 1,40,000 यूज नहीं किया, तो वी हैव 4,50,000 which we will use for creating CRR. For creating CRR. Next one,
वी वांट ना, क्वेश्चन में न्यू शेयर कितना है वो दिया नहीं है, तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर्स कितना है वी डोंट नो, सो कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर्स, इसके लिए क्या करेंगे, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड कितना है, 60,000 इंटू 20, वन शेयर का वैल्यू 20 रुपीज है, so how much is this coming, 60,000 into 20, it is coming to 12 lakhs. इसमें से लेस करते हैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ न्यू शेयर्स। अब ये हमें पता नहीं है, ये बैलेंसिंग फिगर रहेगा, बट इसका बैलेंस सीआरआर होता है, सीआरआर हमें पता है कितना क्रिएट करना है, सीआरआर वी नो हाउ मच टू बी क्रिएटेड, 4,50,000, वर्किंग नोट 1 से हमें पता है, वर्किंग नोट नंबर 1, एज पर वर्किंग नोट नंबर 1, as per working note number 1, we know that how much CRR has to be created. So how much is the number of shares? Nominal value will be difference निकालो. This is the balancing figure. Balancing figure मतलब हमें फ्रेश इशू मिल गया, कितना रहेगा, एक शेयर कितने का है, क्वेश्चन में दिया है ना, 1 शेयर ऑफ इक्विटी शेयर कितने का है, इक्विटी शेयर एक 10 रुपीज का है, और हम यहाँ पे जब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करेंगे तो 2 रुपीज के प्रीमियम में इशू करेंगे, तो 10 रुपीज का शेयर 12 रुपीज गिवन इन द क्वेश्चन। सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालते, नंबर ऑफ equity shares, number of equity shares issued, कैसे, कितना है, कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल या नॉमिनल value of equity shares divide by face value per शेयर, या तो इधर मैं लिखती हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल, ये नॉमिनल वैल्यू नहीं लिखती हूँ, आई विल राइट हियर इक्विटी शेयर कैपिटल, ये कौन सा वाला है, न्यू शेयर्स, तो हाउ मच, 7,50,000 डिवाइड बाय 1 शेयर इज ऑफ 10, सो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो जाएगा 75,000 शेयर्स, मिल गया ना नंबर ऑफ शेयर्स। अभी हम हमारी एंट्री में जा सकते हैं, नाउ कैन वी गो टू द एंट्री, सी दिस इज फुल वर्किंग नोट, पूरा वर्किंग नोट है इधर आपके साथ, द वंस हु वांट टू टेक स्क्रीनशॉट कैन टेक नाउ, फुल वर्किंग नोट इज देयर, द वंस हु वांट टू टेक स्क्रीनशॉट can take the screenshot. So now let us go to the entry. Fresh issue करना है, मार्केट में शेयर्स इशू करना है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कितना नंबर ऑफ शेयर है, 75,000, पर मैं यहाँ पे 12 लिखूंगी, 10 रुपीज शेयर का
₹2 प्रीमियम का, तो हाउ मच यू गेट? 75,000 into 12, you get 9 lakh. और यहाँ पे दो चीज क्रिएट हो रहे, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. हाउ मच? 75,000 into 10. 10 rupees is the face value of equity share. जो ₹2 एक्स्ट्रा दिया वो तो प्रीमियम है. And here we will write, तो प्रीमियम का पैसा किधर सेव करते? सिक्योरिटीज प्रीमियम. कितना है? 75,000 into 2. This will give us how much? 1,50,000. Being new shares issued. This is also done. Now we will go to redemption. अभी हमने दोनों एंट्री इन्वेस्टमेंट भी सेल किया, फ्रेश इशू भी किया. नाउ वी कैन गो टू रिडेम्पशन. रिडेम्पशन में कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर है? लेट अस सी. 12% प्रेफरेंस शेयर्स एंड प्रीमियम आल्सो इज देयर. सो 12% प्रेफरेंस शेयर कैंसल हो जाएगा. 12% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज अ लाइबिलिटी. लाइबिलिटी तुम लोग बोलते हो क्रेडिट बैलेंस होता है, बट बिकॉज इसको कैंसल करना है 60,000 into 20, इट इज कमिंग इन द डेबिट. हाउ मच कैंसल करना है इसलिए डेबिट में है, नहीं तो प्रेफरेंस शेयर जो भी लाइबिलिटी है वो क्रेडिट होता है. एक और चीज देने वाले, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट. ये प्रीमियम हमारे लिए क्या है? एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं ना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. इट्स अ लॉस एक्सपेंस. तो कितना देने वाले? ₹1 देने वाले पर शेयर. ₹1 देने वाले. दिस बिकम्स 60,000. Who will get all this money? Preference share holders. 12,60,000. Being amount due on redemption. Being amount due on redemption. नाउ हमें CRR भी क्रिएट करना है. CRR हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है. कितना है CRR? CRR हमें ऑलरेडी पता है कितना है, 4,50,000. और हमारे पास क्वेश्चन में हमने किसको यूज किया? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर क्रिएटिंग CRR, बिकॉज वी आर ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हमारे पास कौन सा था रिजर्व? सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो CRR बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूज करेंगे. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व है, क्रेडिट बैलेंस, बट यूज हो रहा है इसलिए इट्स इन द डेबिट. बिकॉज द लाइबिलिटी इज बीइंग यूज्ड. यूज होगा तो कम होगा इसलिए डेबिट में है. और नया लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. being CRR created. Being CRR created. अब CRR 12 लाख हो गया. 7,50,000 फ्रॉम फ्रेश इशू, 4,50,000 फ्रॉम CRR. बट ये 60,000 के लिए अभी भी प्रोवाइड करना है. तो अगेन हमने P&L अकाउंट में से इतना पैसा साइड में रखा था. सी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए 60,000 साइड में रखा था, तो वो यूज करेंगे. P&L अकाउंट यूज करेंगे. वी विल यूज again use profit and loss account. Debit how much? 60,000 and
क्या है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट में है, अभी कैंसिल करेंगे तो इट विल बी इन द ऑपोजिट, 60,000 being premium on redemption return of premium on redemption return of, ये भी हो गया। अब फाइनली वी कैन मेक द पेमेंट, पेमेंट करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिट में है, अब इसको कैंसिल करेंगे तो डेबिट में हो जाएगा टू कैश बैंक एंड नथिंग टोल्ड अबाउट कैश बैंक बैलेंस। क्वेश्चन में देखो कैश बैंक बैलेंस कितना है दिया ही नहीं है, तो अज्यूम करेंगे सफिशिएंट बैलेंस है, देयर इज सफिशिएंट बैलेंस इन द कंपनी टू पे द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बिकॉज हमें क्वेश्चन में कैश बैंक के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो लेट अस अज्यूम देयर इज सफिशिएंट बैलेंस टू पे द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है ना अबाउट डिसीजंस हैव बीन कैरीड आउट, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड, मींस वी हैव सफिशिएंट बैलेंस। कैश बैंक का बैलेंस नहीं दिया बट हमारे पास है पैसा, कितना देना है, अभी कुछ ऐसा भी नहीं बोला दैट किसको, कुछ लोगों को शेयर्स, कुछ शेयर होल्डर्स कुछ शेयर्स नहीं का पेमेंट नहीं किया, nothing has told means everyone has been paid and they have told redemption has been carried out, so ये last point being amount paid on redemption, being amount paid on redemption, तो अमाउंट पे भी कर दिया रिडेम्पशन में। सी क्या बोला है, अबाउट डिसीजंस कैरीड आउट, प्रेफरेंशियस रिडीम, और इसके साथ हमने हमारा लास्ट एंट्री पास कर लिया एंड दिस सम इज डन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।